یہ کہانی ایک پرانے زمانے کی ہے کہ ایران کے شہر تبریز میں مکشا نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ آدمی انتہائی نیک دل اور سادہ لو تھا۔ تبریز کے بازار میں اس کی ایک دکان تھی جہاں وہ تجارت کرتا تھا۔ جو کوئی بھی اس کی دکان پر آتا وہ اس سے انتہائی نرم لہجے میں بات کرتا۔ اس کے شفیق رویے اور میٹھے لہجے کی وجہ سے باقی دکانداروں کے مقابلے میں اس کے پاس زیادہ گاہک آتے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا بھائی عبدل شاہ بھی ایک دکان کا مالک تھا، مگر وہ تیز زبان اور غصے والا شخص تھا۔ اس کی سختی کی وجہ سے لوگ اس سے تجارت کرنے سے گریز کرتے تھے۔ دوسری طرف مکشا کی دکان پر ہمیشہ رش لگا رہتا۔ عبدل اپنی خالی دکان کو دیکھ کر دل ہی دل میں جلتا اور مکشا سے حسد کرنے لگتا۔ اس نے کئی بار اپنے چھوٹے بھائی سے دکان چھیننے کی کوشش بھی کی اور ہمیشہ یہی کہتا کہ یہ دکان میرے حصے میں آنی تھی، جس کے جواب میں مکشا ہمیشہ اسے نرمی سے سمجھاتا کہ گاہک دکان دیکھ کر نہیں آتے بلکہ دکاندار کے اخلاق اور رویے کی وجہ سے آتے ہیں۔ روز بروز عبدل کی نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ دونوں بھائی شادی شدہ تھے۔ مکشا کی بیوی انتہائی نیک دل اور خوش مزاج عورت تھی، جبکہ عبدل کی بیوی اسی کی طرح سخت مزاج اور حسد کرنے والی تھی۔ وہ اکثر اپنے شوہر کو اس کے چھوٹے بھائی کے خلاف بھڑکتی رہتی اور کہتی، اب کے بھائی نے آپ کے حصے پر ڈاکہ مارا ہے اور اب وہ آپ کے بچوں کا حق بھی چھین رہا ہے۔ آپ کو کچھ کرنا ہوگا۔ اگر آپ روز کی طرح یوں ہی خالی ہاتھ واپس گھر آ جائیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ بیوی کی بات سن کر عبدل سوچنے لگا کہ وہ اپنے بھائی سے کسی صورت بھی وہ دکان نہیں لے سکتا، کیونکہ ان کے باپ نے وہ دکان وصیت میں مکشا کے نام کر دی تھی، لیکن حسد اور لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا، اس لیے وہ کسی طرح اپنے بھائی کو راستے سے ہٹانے کے منصوبے بنانے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد مکشا کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ یہ خبر سن کر عبدل کی بیوی جل کر اپنے شوہر سے بولی، اب کو فوراً کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ اب کے چھوٹے بھائی کا وارث اب دنیا میں آ چکا ہے۔ وہ بھی جوان ہو کر اپنے باپ کی طرح ہمارے بچوں کا حق کھائے گا۔ یہ سن کر عبدل کے دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے ایک خوفناک منصوبہ بنایا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنے بھائی اور اس کے نوزائیدہ بیٹے کو جان سے ہی مار دے۔ عبدل نے ایسا ہی کیا۔ اس نے کچھ ڈاکوؤں کو پیسے دے کر اپنے بھائی کے گھر بھیجا۔ مکشا اس وقت گھر پر اکیلے تھے، کیونکہ اس کی بیوی اپنے بیٹے کو لے کر اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ڈاکو جب مکشا کے گھر پہنچے تو انہوں نے پہلے پورے گھر میں لوٹ مار کی، ہر کونا کھندال ڈالا اور پھر مکشا کو قتل کر کے وہاں سے فرار ہو گئے۔ جب یہ خبر اس کی بیوی کو ملی تو وہ فوراً اپنے بیٹے کو لے کر گھر پہنچی۔ بھائی کو اپنے ہاتھوں سے ماروانے والا عبدل بھی مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے اپنے بھائی کے گھر آ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد مکشا کو دفن کر دیا گیا۔ مکشا کی بیوی اپنے باپ سے کہنے لگی، بابا جان، مجھے اپنے شوہر کے بھائی پر شک ہے، اسی نے اپنے سگے بھائی کو قتل کروایا ہے۔ یہ سب دولت کے لالچ اور حسد کی وجہ سے ہوا ہے، اور اب وہ میرے بیٹے کو بھی ماروانے میں دیر نہیں لگائے گا۔ مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ بوڑھا باپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے گیا، لیکن عبدل نے ان کا وہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ اس نے پھر آدمیوں کو اپنی بھابھی کے گھر بھیجا۔ گھر کے باہر گھوڑوں کے ٹاپ کی آواز سن کر مکشا کی بیوی کو شک ہو گیا۔ وہ فوراً اپنے بیٹے کو لے کر گھر کے پچھلے راستے سے باہر نکل گئی اور اپنے بیٹے کو لکڑی کے ایک صندوق میں ڈال کر ندی میں بہا دیا۔ صندوق کے اندر ایک خط بھی رکھا تھا، جس میں کیا لکھا تھا یہ صرف مکشا کی بیوی ہی جانتی تھی۔ عبدل کے درندہ صفت آدمی وہاں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اس بیوہ عورت کے بوڑھے باپ کو بے دردی سے قتل کر دیا، پھر اس بے بس عورت کو رسیوں سے جکڑ کر گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے عبدل کے خفیہ ٹھکانے کی طرف لے گئے۔ شام کے وقت جب اس عورت کو ہوش آیا تو عبدل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئی، عبدل فوراً اس سے اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھنے لگا، لیکن اس نے ایک لفظ بھی نہ بتایا۔ عبدل نے اپنی بھابھی پر ہر طرح کا تشدد کیا، مگر سب بے سود رہا۔ وہ خاموشی سے سب کچھ سہتی رہی، لیکن اپنے بیٹے کا راز فاش نہ کیا۔ آخرکار عبدل غصے سے چلانے لگا، جب تک تم اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں بتاؤ گی، اس وقت تک تم یہاں قید رہو گی۔ اس کے بعد عبدل نے اپنے بھائی کے مکان اور دکان پر قبضہ کر لیا۔ ظلم کی انتہا دیکھ کر عبدل کی بیوی بہت خوش تھی۔ انہوں نے ناجائز خون بہا کر سب کچھ ہتھیا لیا تھا۔ سچ کہتے ہیں، لالچ اور حسد انسان سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔ دوسری طرف مکشا کی بیوی نے جس صندوق میں اپنے بیٹے کو ڈال کر ندی میں بہا دیا تھا، وہ بہتے بہتے ایک بستی سے گزر رہا تھا۔ اس بستی میں ایک چرواہا ندی کے کنارے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ندی میں بہتے ہوئے صندوق پر پڑی۔ تجسس کے مارے اس نے فوراً ندی میں اتر کر صندوق کو پکڑ لیا۔ جب اس نے صندوق کھولا تو اس کے اندر ایک ننھا اور پیارا سا بچہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر چرواہے کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔
वो फौरन संदूक उठाए बकरियों को निकलता हुआ तेजी से घर की तरफ चल पड़ा। आज वो मामूल के बरक्स जल्द घर वापस आ गया था। इसकी बीवी अपने शौहर को यूं बेचैन और जल्द आते देखकर हैरान हुई। वो ताज्जुब से बोली, आज आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए, और ये आपके हाथ में क्या है? चरवाहे ने जल्दी से वो संदूक चारपाई पर रखा। संदूक में बच्चा देखकर उसकी बीवी की आंखें खुशी से चमक उठी। इसने फौरन बच्चे को नरमी से उठाया और अपने सीने से लगा लिया। इस जूड़े की कोई औलाद नहीं थी और चरवाहे की बीवी इस मासूम को यूं मोहब्बत से थामे हुई थी जैसे बरसों की महरूमी का अजाला हो गया हो। वो पूछने लगी, आप इस बच्चे को कहाँ से लेकर आए हैं? ये बच्चा तो किसी बड़े घराने का लगता है। चरवाहे ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इस बच्चे को कहीं से नहीं लाया। मैं तो नदी पर बकरियों को पानी पिला रहा था जब मैंने ये संदूक पानी में बहता हुआ देखा। जब मैं इसके करीब गया तो उसके अंदर ये नन्हा और प्यारा सा बच्चा था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन वहां कोई नहीं था, इसलिए मैं इसे लावारिस समझकर घर ले आया। चरवाहे की नजरें अचानक संदूक के अंदर पड़े एक कागज पर जा ठहरे। इसने वो खत उठाया। इसके कांपते हाथों ने आहिस्ता से लिफाफा खोला और जैसे ही इसकी आंखों ने हुरूफ को पहचाना, इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। खत में लिखा था, मैं अपने बेटे हमदान को एक दरिंदा सिफत आदमी से बचाने के लिए पानी में बहा रही हूँ। जिस किसी को भी ये मिले वो इसे अपना बेटा हमदान बनाकर उसकी परवरिश करे। इसका बाप इस दुनिया में नहीं रहा, शायद अब मैं भी इस दुनिया में ना रहूं। मैंने अपने बेटे को नाम के सवा कुछ नहीं दिया। उन्हें लफ्जों पर वो खत मुकम्मल हो गया। चरवाहे ने वो खत और संदूक एक पुराने कमरे में एहतियात से छुपा दिया और बच्चे की परवरिश में मसरूफ हो गया। इसने हमदान की निहायत मोहब्बत और तवज्जो से देखभाल की। वो इसे अपने हकीकी बेटे की तरह चाहता था। कुछ सालों में हमदान जवान हो गया। वो इंतहाई ताकतवर और दराज कद का मालिक था। चरवाहा अब बूढ़ा हो चुका था, इसलिए हमदान ने बकरियों की देखभाल संभाल ली। इसने न सिर्फ मवेशियों की तादाद में बेपनाह इजाफा किया बल्कि चरवाहे के घर के हालात भी बदल दिए और इसी पेशे से एक बड़ा घर तामीर कर लिया। एक दिन चरवाहा बीमार पड़ गया। हमदान ने इसे तकलीफ में देखकर कहा, बाबा चली मैं आपको तबीब के पास ले चलता हूँ। चरवाहे ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। हमदान ने कहा, जी अब्बा जान मैं सुन रहा हूँ। बूढ़े चरवाहे ने कहा, बेटा आज मैं तुम्हें एक हकीकत से आगाह करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूँ। ये सुनकर हमदान हैरान से चरवाहे की तरफ देखने लगा। बूढ़े ने एक पुराने संदूक की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये संदूक जो तुम्हारी सामने पड़ा है आज से 22 साल पहले नदी में बहता हुआ आया था और उसके अंदर तुम थे। तुम्हारे सगे माँ बाप कोई और हैं। ये खत तुम्हारी माँ का है। बूढ़े ने वो खत हमदान को दिया। हमदान वो खत पढ़कर रोने लगा। बूढ़ा इससे कहने लगा, बेटा मैंने तुम्हें इस खत के मुताबिक पाल कर जवान कर दिया है। जाने कब मैं आंखें बंद कर जाऊं, इसलिए मैं तुम्हें आज एक बहुत बड़ी हकीकत बता रहा हूँ। तुम्हें अपने असल घर वालों को भी ढूंढना चाहिए। हमदान चरवाहे से कहने लगा, बाबा यकीनन मैं अपने घर वालों को जरूर तलाश करूंगा, लेकिन जिस प्यार और शफकत से आपने मुझे पाला है मैं कभी आपको नहीं छोड़ सकता। आप मेरे लिए हमेशा मेरे बाबा ही रहेंगे। इसके बाद हमदान तबीब को घर ले आया। बूढ़े की हालत जब थोड़ी सी संभली तो उसने हमदान से कहा, बेटा अब तुम्हें सफर पर रवाना होना चाहिए। हमदान ने चरवाहे की बात मान ली। इसने वो खत जेब में डाला, जरूरत का सामान लिया और घोड़े पर बैठकर सफर पर रवाना हो गया। वो नदी के रास्ते से होता हुआ घोड़ा दौड़ा जा रहा था। रास्ते में आने वाली हर बस्ती में कयाम करता और वहां मौजूद लोगों से अपने वालिदैन के बारे में दरियाफ्त करता, लेकिन इसे कोई सुराग ना मिला। आखिर चलते चलते वो एक दूर दराज बस्ती में जा पहुंचा जहां कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे एक बूढ़ा शख्स बैठा दिखाई दिया। वो बूढ़ा इस बस्ती का इमाम था। हमदान आहिस्ता कदमों से इसके करीब गया और इंतहाई अदब से सलाम किया। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए सलाम का जवाब दिया और शफकत भरे लहजे में बोला, बेटा मैंने तुम्हें इस बस्ती में पहली बार देखा है, कहो कैसे आना हुआ। हमदान ने मदब लहजे में कहा, बाबा जी मैं वाकई यहाँ पहली बार आया हूँ और मैं दरअसल किसी की तलाश में हूँ। इमाम ने नरमी से पूछा, बेटा बताओ तुम्हें किसकी तलाश है। हमदान ने खामोशी से वो खत बूढ़े के हाथ में थमा दिया। जैसे ही इमाम ने खत पढ़ा वो हमदान को गौर से देखने लगा और गहरी सांस के साथ बोला, बेटा तुम मुक्शा के बेटे तो नहीं। तुम्हारी माँ का नाम सफिया था और तुम्हारा बाप मेरे पीछे ही नमाज पढ़ा करता था, लेकिन इसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। इसके बाद तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें नदी में बहा दिया था। ये कहते ही बूढ़े इमाम ने हमदान को गिले से लगा लिया और आहिस्ता से बोला, बेटा ये बात बहुत कम लोग जानते हैं
कि ये सब कुछ तुम्हारे ताया अब्दल का किया धुरा है। इसे तुम्हारे बाप से हसद था। इसने तुम्हारे बाप को कत्ल करके तुम्हारी सारी जायदाद हथिया ली। वो तुम्हें भी मारना चाहता था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए नदी में बहा दिया, मगर वो खुद अब्दल के जुल्म का शिकार हो गई। इसने तुम्हारी माँ को कैद कर लिया और इसे बेपनाह तशद्दुद का निशाना बनाया ताकि तुम्हारे बारे में जान सके। लेकिन इस अल्लाह की बंदी ने अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ भी ना निकाला। बरसों बीत गए, अब इस पर ज्यादा सख्त पहरा नहीं होता। वो आज भी इसी बस्ती के बीचों बीच एक पुरानी हवेली में कैद है। बेटा, वक्त आ गया है कि तुम इसे बचाओ। मैं तुम्हारे साथ चिल्लूंगा। हमदान ने बगैर वक्त ज़ाय किए दरख्त के साथ अपना घोड़ा बांधा और इमाम को साथ लेकर हवेली की तरफ बढ़ा। वो सीधा एक पुराने कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ एक बूढ़ी औरत रस्सियों में जकड़ी जमीन पर बैठी थी। इसकी आंखों में बेबसी और चेहरे पर गुजरे वक्त के जख्मों की कहानियां लिखी हुई थीं। हमदान ने इसे इस हालत में देखकर चीख उठा। इसकी आंखों में आंसू भर आए। वो फौरन आगे बढ़ा और कांपते हाथों से रस्सियों को खोलने लगा। बूढ़ी औरत ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, तुम मुझे क्यों आजाद कर रहे हो? वो बहुत जालिम है, कहीं वो तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। तुम क्यों एक बूढ़ी औरत के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो? हमदान ने फौरन इस औरत के पांव छुए और उससे कहने लगा, नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं होगा। वो बूढ़ी औरत बार बार हमदान से कह रही थी, बेटा, तुमने मेरी वजह से क्यों अपनी जान खतरे में डाल दी? इमाम ने मस्जिद की बूढ़ी औरत से कहा, सफिया बहन, ये लड़का तुम्हारा बेटा है। तुम्हारा हमदान तुम्हारा बेटा वापस आ गया है। इसने तुम्हें ढूंढ लिया है। सफिया की हैरत की इंतहा ना रही। इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। नहीं इमाम साहिब, अब झूठ बोल रहे हैं। हमदान ने फौरन जेब से अपनी माँ का लिखा हुआ खत निकाला और उसके सामने रख दिया। वो बूढ़ी औरत अपना लिखा हुआ खत देखकर जार ओ कतार रोने लगी। वो फौरन उठी और अपने बेटे को गले से लगा लिया। हमदान, मेरा बच्चा, तुम कितने जवान हो गए हो। शायद खुदा ने मुझे इसीलिए जिंदा रखा था कि इसने मुझे दोबारा तुमसे मिलवाए। बेटा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, कहीं तुम्हारा ताया तुम्हें नुकसान ना पहुँचा दे। लेकिन हमदान कहने लगा, अम्मा जान, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे इससे अपने बाप की मौत का बदला लेना है और उसने जो हमारी विरासत छीनी है इसे भी वापस लेना है। उन्होंने वो रात इमाम के घर गुजारी। अगले दिन हमदान अपनी वालिदा को लेकर काजी की अदालत में पहुंचा और अपने ताया के खिलाफ मुकदमा पेश कर दिया। काजी ने फौरन अब्दल को तलब किया। अब्दल इस बूढ़ी औरत और नौजवान को देखकर हैरत में मुब्तला हो गया। काजी ने अब्दल से पूछा, तुम पर कत्ल और जायदाद पर नाजायज कब्जे का इल्जाम है, क्या ये सच है? अब्दल झूठ बोलते हुए कहने लगा, नहीं काजी साहिब, मैंने कोई जायदाद नहीं छीनी, बल्कि मैं तो अपने भाई की विरासत की हिफाजत कर रहा था, क्योंकि इसका कोई वारिस नहीं था। इस पर सफिया बोली, नहीं काजी साहिब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। जो लड़का आपके सामने खड़ा है यही मेरा बेटा है और यही इस जायदाद का असल वारिस है। इस शख्स ने पहले मेरे शौहर को रास्ते से हटाया, फिर मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। मैंने अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर इसे नदी में बहा दिया ताकि ये दरिंदा इसे छेड़ ना सके। इसके बाद इसने मुझे कैद कर लिया और सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया, मगर कुदरत ने मेरे बेटे को बचा लिया और आज 20 साल बाद इसने मुझे ढूंढ लिया है। ये वो खत है जो मैंने अपने बेटे के साथ संदूक में रखी थी और इस सारे वाक़ये के गवाह ये इमाम साहिब भी हैं। इमाम ने भी अब्दल के खिलाफ गवाही दे दी। ये सब सुनकर अब्दल के होश उड़ गए। इसके वहम व गुमान में भी नहीं था कि उम्र के आखिरी हिस्से में इसकी पकड़ हो जाएगी। काजी ने जुर्म साबित होने पर अब्दल को फांसी की सजा सुनाई और मोक्षा की सारी जायदाद, जिस पर अब्दल ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा था, हमदान के हवाले कर दी। यूं अब्दल अपने अंजाम को पहुंचा और हमेशा के लिए जुल्म का खात्मा हो गया। हमदान अपनी माँ को लेकर अपने वालिद के पुराने घर आ गया और बाप का कारोबार, जिस पर उसके ताया ने कब्जा कर लिया था, अब वो खुद संभालने लगा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हसद करना बहुत बड़ी बुराई है। जो इंसान हसद करता है वो दूसरों की खुशी और कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पाता और बुरे कामों में पड़ जाता है। और दोस्तों, जुल्म करने वाला एक ना एक दिन पकड़ा जाता है, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। अल्लाह सब कुछ देख रहा है, वो जुल्म का बदला जरूर देता है। इसलिए हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई और इंसाफ का साथ देने वाले हर हाल में कामयाब होते हैं।